Okay, so in this video, I'll discuss with you about a new chapter today, that is a stock. So through this video, I make you understand what is stock, what is its definition, how the stocks are being classified, what are the different ingredients that we require to make different stock, along with its preparation of methods of preparations. So let us start with the definition of a stock. So a stock can simply define as a liquid which has been simmered for a long time in order to extract the flavor from ingredients used. स्टॉक के डिफिनेशन में ये बोला जा रहा है कि स्टॉक जो है वो एक तरीके का लिक्विड है जिसको हम लोग बहुत देर तक सिमर्ड करते हैं ऑन अ स्लो फ्लेम फॉर अ लॉन्गर टाइम टू एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर। जो उसका फ्लेवर होता है उससे उस फ्लेवर को निकालने के लिए जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उसके फ्लेवर को निकालने के लिए कुछ लंबे समय तक स्लो फायर पे हम लोग उस लिक्विड को सीमर्ड करते हैं। तो वो जो फ्लेवरफुल लिक्विड होता है उस फ्लेवरफुल लिक्विड को वी यूज टू कॉल स्टॉक। इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस water is the liquid medium used in which flavor is extracted and the same is passed and used accordingly। तो वाटर जो है वो हमारा एक लिक्विड मीडियम है जिससे कि हम लोग स्टॉक को प्रिपेयर करते हैं। स्टॉक जो है वो दैट इज यूजुअली मेड फ्रॉम द बोन्स एंड द वेजिटेबल्स। जिस तरीके का बोन्स हम लोग यूज करेंगे स्टॉक बनाने के लिए that would depend upon the final uses of the stock and the same way the name is also suggested। अगर हम लोग चिकन के बोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं स्टॉक बनाने के लिए तो उसका नाम होगा चिकन स्टॉक। अगर फिश के बोन्स को इफ वी आर यूजिंग द बोन्स ऑफ द फिश टू मेक द स्टॉक then the name of that stock is fish stock। Same as that way if we are using the vegetables for making the stock, so the name of that stock is vegetable stock। So उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टॉक का जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करते हैं उस इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंगली जो है उस स्टॉक का नामकरण हो जाता है। बोन्स आर पोरस एंड सम वेयर हार्ड इन नेचर and hence prolonged amount of cooking at lower temperature is the best method of cooking stock। Vegetables are again soft in nature, soft होता है, so prolonged cooking would make the vegetables to go mushy हो जाएगा and bitter as well, so it is never advised to simmer vegetables for longer than 45 minutes। तो अगर हम वेजिटेबल स्टॉक बना रहे हैं तो 45 मिनट से ज्यादा उसको हम लोग सिमर नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगा वेजिटेबल जो है वो मशी हो जाएगा एंड बीटर एज वेल। When simmered, the impurities from the stock rises to the surface of the liquid and forms a layer। जो लेयर आ जाता है ऊपर में that is called scum and that scum floating on the top, so it is advised to keep it removing the scum। so इस scum को हम लोग क्या करेंगे बराबर उसको रिमूव करते रहेंगे from time to time in intervals during the time required to make a particular stock, or else stock अगर ऐसा नहीं करेंगे उसके स्कम को रिमूव नहीं करेंगे तो स्टॉक क्या होगा वुड गेट क्लाउडी एंड टर्म्ड एज क्लाउडी स्टॉक। So this is the most important part of the stock as this will give a definite characteristics to the stock। If we are talking about chicken stock, a chicken stock simmered with Indian spices would be used only in the Indian cooking। Chicken stock with Thai flavoring would be used only in Thai dishes। Similarly उसी तरीके से western stock would use herbs and other vegetables depending upon the type of the stock। The bunch of the herbs used to flavor western stock is known as bouquet garni। जो herbs के जो bunches होते हैं उसको हम लोग we used to call it bouquet garni। bouquet garni में क्या होगा certain spices such as bay leaf, peppercorn, dry thyme
are used to spice up the stock and are known as sachet de spices. Literally means bags of spices. Bouquet garni क्या है? That is bags of spices. A stock should be flavored enough to allow it for easy identification, but the flavor should not be overpowering to make the real flavor of the stock. उसको हम लोग ओवर पावरिंग नहीं देंगे ताकि वो जो है उसका रियल फ्लेवर जो है स्टॉक का हट ना जाए। कुछ यहाँ पे जो है हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक बार इसको रिवीजन करना चाहूंगा कि स्टॉक को जैसा मैंने बताया कि स्टॉक जो है वो एक फ्लेवरफुल लिक्विड है that contains many nutritive and flavored elements that are mixed in it after simmering for a long time। जैसा कि मैंने बताया स्टॉक के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसा कि लिक्विड मीडियम मैंने आपको बताया कि वाटर होगा, उसी प्रकार से जो स्टॉक के कुछ एलिमेंट्स जैसे बोन्स हो सकते हैं, आपके इधर वेजिटेबल्स हो सकते हैं और आपके हर्ब्स और कुछ एरोमेटिक्स हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे ब्रॉथ्स है, ब्रॉथ्स नोन एज बुलियन इन फ्रेंच। It is a result of poaching meat or vegetables in a liquid medium। ब्रॉथ के बाद हमारा एक हुआ पोर्ट बुलियन, जिसमें हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं विद सीजनिंग एंड फ्लेवरिंग विद एन एसिडिक मीडियम सच एज वाइन और लेमन जूस, और कलेक्टिवली वी यूज टू कॉल इट एज अ पोर्ट बुलियन। एक बनता है हमारा न्यूट्रल स्टॉक। न्यूट्रल स्टॉक क्या होता है? इट इज यूजुअली रेफर टू अ व्हील स्टॉक, व्हील स्टॉक विच इज व्हाइट इन कलर एंड हैज अ न्यूट्रल फ्लेवर। तो उसका फ्लेवर ऐसा नहीं होता है, वो न्यूट्रल फ्लेवर उसके होते हैं, तो वो एक हमारे न्यूट्रल स्टॉक हो सकते हैं। एक जो टर्म है दैट इज फ्यूमे। फ्यूमे क्या है? फिश स्टॉक को वी यूज टू कॉल फ्यूमे इन फ्रेंच। बहुत सारे पीपल जो है कंफ्यूज हो जाते हैं विद ग्लेस विच मीन्स अ रिड्यूस्ड फिश स्टॉक। रेमुलास, रेमुलास इट इज ऑल्सो नोन एज रीवेटिंग ऑफ द सेकेंड स्टॉक। सेकेंड स्टॉक को रीवेटिंग करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट स्टॉक बना हुआ होता है। When the stock is made and strained off, more water is added to the remaining bones and vegetables। ऐसा लगता है कि अभी ज्यादा कुछ वाटर को ऐड ऑन करने की जरूरत है, तो हम लोग कुछ वाटर को ऐड करते हैं टू द रिमेनिंग बोन्स एंड द वेजिटेबल्स एंड द स्टॉक इज सिमर्ड फॉर अराउंड एन आवर। कुछ घंटे के लिए उसे सिमर किया जाता है स्लो फायर पे, स्लो फ्लेम पे, दैट इज कॉल्ड रेमोलाज। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया, कुछ आपको टर्म्स मैंने आई हैड डिस्कस्ड some basic terminology related to a stock। So we'll move ahead with the classification of the stock। स्टॉक के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, स्टॉक को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आर देयर। सबसे पहला हमारा है व्हाइट स्टॉक, ब्राउन स्टॉक, गेम स्टॉक, फिश स्टॉक एंड वेजिटेबल स्टॉक। यहाँ पे आई डिस्कस विथ यू फर्स्ट वन बाय वन। फर्स्ट दैट इज व्हाइट स्टॉक। व्हाइट स्टॉक क्या है कि दिस इज प्रिपेयर्ड by the method as I have discussed with you earlier। So white stock, both white and brown stock जो है वो दोनों बनाए जाते हैं with bones and vegetables। However, the process and timing to be followed for each is slightly different। अगर vegetables से बना रहे हैं such as leeks, onion, celery, turnips are used to flavor the stock as red colored। Vegetables like carrot will change the color of the stock। No tomato product is used for white stock। व्हाइट स्टॉक के लिए हम लोग कोई टोमेटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्राउन स्टॉक के केस में क्या करेंगे कि जो बोन्स एंड द वेजिटेबल्स है, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं। रोस्ट और इट मे बी कैरेमलाइज्ड। टोमेटो पेस्ट इज यूज्ड एंड इट इज ऑल्सो सॉटेड। सॉटे करते हैं टू गेट अ डीप ब्राउन कलर। द साइन बोन्स ऑफ द बीफ have the best flavor and hence the most preferred for brown beef stock। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम जिसका बोन्स यूज करते हैं उस स्टॉक का नाम उस स्टॉक का नाम उस एनिमल के बोन्स के अकॉर्डिंगली हम उस स्टॉक का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम बीफ का यूज करते हैं व्हाइट स्टॉक बनाने के लिए, उसका नाम होता है व्हाइट बीफ स्टॉक। अगर हम मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाइट मटन स्टॉक। व्हील का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर स्टॉक बनाने के लिए तो व्हाइट व्हील स्टॉक। चिकन यूज कर रहे हैं तो व्हाइट चिकन स्टॉक। तो उसके फ्रेंच में अलग अलग नाम है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाइट स्टॉक, ब्राउन स्टॉक, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है स्टॉक का, दैट इज फिश स्टॉक. यूजुअली फिश स्टॉक इज मेड बाय यूजिंग फिश ट्रिमिंग एंड फिश बोन्स. फिश बोन से हम लोग बनाते हैं. फ्लेश इज अवॉइडेड as it has short and delicate fiber which can make the stock go cloudy while cooking. Sometimes lime is also added to help the flesh to quickly coagulate and seal so it does not fall off. Even the cooking time for fish stock is never simmered more than 20 minutes. Fish stock को हम लोग 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, which again avoids the cloudiness of the stock. अगर बहुत देर तक करेंगे तो स्टॉक हमारा क्या होगा, क्लाउडी अपीयरेंस का हो जाएगा. तो फिश स्टॉक में ये हुआ, मैंने आपको बताया. उसके बाद जो है हमारा कुछ है हमारा गेम स्टॉक. गेम स्टॉक क्या है, जैसे कि दिस स्टॉक इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ गेम एनिमल्स और गेम बर्ड्स. द बोन्स ऑफ द सेम एनिमल और द बर्ड आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टॉक. अगेन जो हमारे वेजिटेबल स्टॉक है, वेजिटेबल स्टॉक भी सेम जो वेजिटेबल से हम बनाएंगे. वेजिटेबल स्टॉक इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर वेजिटेरियन डिशेस. The vegetable used in its preparation may includes क्या क्या हो सकते हैं, onions, carrots, leek, cauliflower, mushroom, etc. The following vegetables should not be used, like starchy vegetables like potatoes, sweet potatoes, and the vegetables which leaf color like spinach, beetroot. उस सब का इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल स्टॉक में नहीं करेंगे. अब सेकेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें अब हम लोग देखेंगे कि स्टॉक्स के जो डिफरेंट स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किया, व्हाइट स्टॉक, ब्राउन स्टॉक, फिश स्टॉक, गेम स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक. अब उसके क्या क्या यूजेस हैं, अलग अलग स्टॉक्स के क्या क्या यूजेस हैं. तो स्टॉक्स आर द बेस फॉर एनी वेस्टर्न कुकिंग. मोस्ट कॉमनली इट इज यूज टू मेक सूप एंड सॉसेजेस. स्टॉक का जो यूज होता है वो मेनली सूप एंड सॉसेजेस बनाने में हम लोग करते हैं. बट द यूजेज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस. जो व्हाइट स्टॉक है आर यूज्ड in the preparation of white sauces and clear soup, while brown stock are used in brown sausages, red meat stews, braised dishes. A stock can also be used to prepare certain rice dishes such as pela, biryani. सब बिरयानी वगैरह बनाने में हम लोग स्टॉक का यूज करते हैं. इसके कुछ जो स्टैंडर्ड मीर पुआ हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मीर पुआ. यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड मील पुआ हम लोग क्या यूज करेंगे, 50% ऑफ अनियन लीक्स and 25% of carrots, turnip, and 25% of celery and celery roots for white stock. One spring thyme, one bay leaf, 3 to 4 parsley stem, 5 grams of peppercorn, ये ऑप्शनल है, एंड प्लस 1 गार्लिक क्लोव्स फॉर 4 लीटर्स ऑफ वाटर. अगर 4 लीटर का अगर स्टॉक हमें बनाना है तो ये हमें यूज करना होगा. बुके गार्निंग के तौर पे वी हैव टू टेक 1 स्प्रिग thyme plus 1 bay leaf, celery stick फॉर 4 लीटर वाटर्स फॉर 4 लीटर्स ऑफ वाटर्स. तो इस तरीके से हम लोग जो है कुछ स्टैंडर्ड जो रेसिपीज हैं अलग अलग स्टॉक्स के वो हम लोग देखेंगे. उसके बाद जो है हम लोग उसके बाद उसके रेसिपीज को देखेंगे. सर मैंने बताया कि फिश स्टॉक, व्हाइट स्टॉक, ब्राउन बीफ स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक तो हमें करना है, तो उसके साथ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और क्या क्या उसके रेसिपीज हैं. तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि जो फिश स्टॉक है, व्हाइट स्टॉक विद बोन्स, ब्राउन बीफ स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक. टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट स्टॉक्स. जैसे फिश स्टॉक के लिए वी नीड टू टेक 20 मिनट्स टाइम इट टेक टू प्रिपेयर फिश स्टॉक. फॉर वेजिटेबल स्टॉक द टाइम रिक्वायर्ड इज 45 मिनट्स. फॉर चिकन स्टॉक 4 hours. Veal beef stock for around 6 to 8 hours. Stock जो है can be chilled in cold water bath and stored. How we store? Let us discuss that how we store the stock. The stock can be chilled in cold water bath and stored it. Stocks are generally used
इन द सेम डे इन विच दे आर प्रिपेयर्ड, सेम डे में हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। सिंस सम स्टॉक माइट टेक लॉन्गर टाइम टू गेट रेडी एंड दीज स्टॉक्स आर चिल्ड एंड फ्रीज्ड एंड देन इट कैन बी फ्रीज स्टोर्ड एट -18 to -24 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। स्टॉक्स का यूज क्या है? स्टॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया सूप को बनाने में, सॉस को बनाने में। स्टॉक्स आर यूजुअली used in making of soups and thickened to form sausages. Some stocks are reduced and used as a glaze to give shiny appearance. बहुत ऐसे हम लोग राइस डिश भी बनाते हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया राइसेस जैसे बिरयानीज में, पहला में वी यूज स्टॉक। Some cold foods are also smeared with glaze. Aspic jelly we use to prepare. Aspic jelly is also made by reduction of stock and is transparent color in nature, and different cut are made with the help of cutters to garnish certain foods like sofroa and smoked fish which is being served cold। तो उसमें भी हम लोग स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कुछ उसके जो है कुछ केयर एंड प्रिकॉशंस हैं वाइल प्रिपेयरिंग द स्टॉक्स। क्या क्या केयर हमें करना होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं जब हम स्टॉक बनाते हैं उस टाइम पे। सबसे पहला जो गोल्डन रूल है कि हमें स्टॉक को बॉयल नहीं करना है, वी नीड टू सिमर इट। तो स्लो फ्लेम पे हमें उसे कुक करना होगा। ऑलवेज सिमर द स्टॉक फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बेटर फ्लेवर। नो ग्रीन लीफ फ्रॉम सेलरी स्टिक शुड बी एडेड टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द स्टॉक। हमें उस मतलब जो ग्रीन लीफ है उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना होगा। यूज ऑफ प्रॉपर टाइमिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर टाइमिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वेजिटेबल स्टॉक को बनाने के लिए वी नीड टू टेक 20 मिनट्स, चिकन स्टॉक को बनाने के लिए इतना, बीफ के स्टॉक को बनाने के लिए वी नीड टू टेक 1 to 2 hours। So time is very important while making a stock। Blanching of bones in hot water is very important before you make white stock of the bones। Always roast the bones to a even brown color and not to burn them। हमेशा उसको ब्राउन करना होगा, ना कि उसे हम जला दें। Do not stir while simmering as few vegetables get mushy and while stirring they get mashed and make the stock cloudy। Cloudy हो सकता है, तो we do not stir while simmering the stock। Add sachet the AP जैसा मैंने बताया at a later stage so that the spices does not overpower the flavor। ज़्यादा फ्लेवर ना हो जाए वो। and aroma of the main ingredients used। ये सब कुछ हमारे केयर्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने होंगे while preparing the stock। जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है जैसे कंसोमे, एस्पेगनॉल, बेलूते, सोरबा, सिनबोन्स, रगौत, ड्रॉस, पोतबूलियां आपके साथ हम लोगों ने मैंने डिस्कस किया। उसके बाद जो है कुछ स्टॉक्स के चार्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर इफ वी आर यूजिंग बीफ बोन्स while preparing white stock, तब उसका नाम क्या होगा? फॉर्म ब्ला दे बॉइफ। व्हाइट मटन स्टॉक है, फॉर्म ब्ला दी मटन। व्हाइट व्हील स्टॉक है, फॉर ब्लादो वॉम। व्हाइट चिकन स्टॉक है, फॉर ब्लादी वॉलेल। तो इस कुछ टाइमिंग है हमारा, जैसे 6 to 8 hours, 6 hours। लैम्ब अगर करेंगे, मटन का इस्तेमाल करेंगे तो 4 hours लगेगा। पोल्ट्री अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी रिक्वायर्ड 3 hours टाइम टू प्रिपेयर दैट स्टॉक। अगर फिश हम बना रहे हैं तो इट रिक्वायर्ड 25 minutes टू प्रिपेयर दैट स्टॉक। तो अलग अलग उसके कुछ कुछ नोमेनक्लेचर्स, अलग अलग उसके कुछ नोमेनक्लेचर्स हैं। उसके जो टर्म्स हैं वो हमारे फ्रेंच में हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस मूव अहेड with the discussion that what are the ingredients we required to make the stock along with the methods, along with its methods। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ब्राउन स्टॉक। ब्राउन स्टॉक में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्राउन स्टॉक्स में इंग्रेडिएंट्स जो है 500 ग्राम लीन स्किन ऑफ बीफ,
अगर हमें बनाना है 500 ग्राम्स का बीफ का ब्राउन स्टॉक, तो हमें क्या करना होगा, 1.5 liters ऑफ कोल्ड वाटर वी नीड टू टेक, 1 tablespoon of salt, 1 medium sized carrot, 1 medium sized onion, 1 stick of celery, bouquet garni, bunch of herbs that I had already discussed with you, and 1/4 tablespoon black peppercorn. So this is the main ingredients required to make brown stock. Next is fish stock. फिश स्टॉक जैसा कि जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, 5 kg फिश बोन्स में 100 grams बटर, 500 grams मीरपुआ, 1 liter white wine, 4 liter water, 1 sachet दी एपिस. इसके जो मेथड्स हैं उसमें हमें क्या करने हैं, क्लीन एंड वॉश द फिश बोन्स टू रिमूव एनी डर्ट, कट द बोन्स into a smaller pieces and sauteed with mirpua, add white wine and cook for 2 minutes, add cold water and the spices of bouquet garni and let the stock simmer for 20 minutes. Remove from fire and strain. While simmering, we need to remove the scum which comes on the surface of the stock, so we need to remove it. Remove from the fire and strain. Discard the mirpua and bones and cool immediately for further uses. तो ये हमारे हैं फिश स्टॉक. पहला था ब्राउन स्टॉक, सेकंड हमने डिस्कस किया फिश स्टॉक, थर्ड जो है दैट इज व्हाइट स्टॉक. व्हाइट स्टॉक के लिए क्या करना है, 4 kg ऑफ चिकन बोन्स हमें लेना है. विद दिस वी नीड टू टेक 6 liter of water, 1 medium sized onion, 1 medium sized carrot, 1 bay leaf, 1/8 teaspoon thyme, 1/8 teaspoon peppercorn, 3/4 parsley steam, 1 cloves. Now how we have to prepare the white stock. So this is the methods. So cut the bones into 3 to 4 inches pieces and rinse in cold water. Blanch the bones, place them in a stock pot, cover with cold water and bring it to the boil. During the boiling, reduce the heat to simmer and skim off the scum carefully. As I have already told, this is the basic point which we have to take into the consideration while preparing the stock, that scum should be removed. Again, we need to add the spices in the stock pot and add onion, carrot, celery and simmer for the length of the time. For chicken, if we are preparing chicken stock, then we need to simmer all the bunches of herbs around 3 to 4 hours. And if we are preparing beef or veal stock, we need to pour all the bunches of herbs around 6 to 8 hours. After simmering, remove from the fire once done, and then strain it and cool it for further use. So this is all about the methods along with the ingredients of white stock, fish stock and brown stock. So in this video we learned that what is the definition of a stock, what are the care and precautions that we need to take while preparing the stock, what are the classification of the stocks, how the stocks are being classified. So I hope you all have understood it well. So this is the last unit of food production of second semester. So I hope you all have understood it well. So thank you very much. This is all about stock.